فرماتے ہیں درس نظامی کے نصاب میں تجدد لانا چاہیے، یہ وقت کے موافق نہیں ہے۔ اس کے لیے وفاق المدارس کا فورم موجود ہے، یہ اس فورم پہ ڈسکس ہو جائے گا، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت سوال ہے محقق عالم بننے کے لیے کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ پہلے پورا کے پورا درس نظامی پڑھیں، استادوں سے سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ تخصص کریں، اپنے آپ کو اندر سے دیکھیں۔ میری مہارت، میرا لگاؤ جو ہے وہ تفسیر میں ہے، تجوید میں ہے، حدیث میں ہے، فقہ میں ہے، مناظرے میں ہے، جس فیلڈ میں ہو آپ اس فیلڈ میں چلو تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے حضرت علامہ حیدری شیخ رحمہ اللہ کا جملہ یاد آ رہا ہے، ارشاد فرماتے تھے کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، جس فیلڈ میں چلتے ہو اس فیلڈ میں اتنی محنت کر لو کہ دنیا تم سے پیار کرنا واجب، تو آپ محنت کریں گے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب موجودہ دور میں بدحالی ہے، اور اس بدحالی کا حل کیا ہے؟ میرے دوستو اس بدحالی کا ایک ہی حل ہے، اہل حق کو منتخب کر کے بھیجو، انشاءاللہ وہ اپنا حصہ ڈال کے۔ حضرت گھمن صاحب کہاں ہیں اس وقت، اور گھمن صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کتب کی ترتیب چل رہی ہے، وہ جیسے مکمل ہوگی وہ آؤٹ آف کنٹری سے آ جائیں گے۔ مفتی صاحب ہماری مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے حضور پاک علیہ السلام نماز میں بھول گئے تو حضرت ابی بن کعب نے لقمہ دیا، اس پر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی بھولتا نہیں، آپ گستاخ ہو، اس بارے میں ارشاد فرما دیں۔ صحیح مسلم جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، کہ لوگوں میں انسان ہوں، اگر بھول جاؤں نماز میں تو مجھے پیچھے صحابہ تم لقمہ قرآن کا دے کر بتا دیا کرو۔ یہاں جملہ میں نے انسان کا بولا ہے، اس سے غلط فہمی نہ لینا کہ نبی ہم جیسا انسان ہے، ہم سے غلطی ہے تو نبی سے بھی غلطی ہے، ہم سے گناہ ہے تو نبی سے بھی گناہ ہے، جی نہیں۔ یاد رکھیں پتھر پتھر میں فرق ہے، ایک پتھر پہ ہم جوتی اتارتے ہیں، ایک پتھر کو چوما جاتا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ پانی پانی میں فرق ہے، ایک پانی نالی میں چل رہا ہے، ایک پانی زمزم کا پانی ہے۔ انسان انسان میں فرق ہے، عام بندہ انسان ہے، گناہوں کا پلندہ ہے، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، گناہ قریب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھولنے کی بات حضور نے فرمائی ہے، وہ صحیح مسلم جس کو پڑھ کے تیرے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے، میں اس کتاب کی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں ہے۔ مولانا صحیح مسلم میں لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ پر منبر پہ لعنتیں کروائیں، اور یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ، آپ نے باقاعدہ جھوٹ بولا ہے۔ یہی بات تو میں نے کتنی مرتبہ انجینئر سے طے کی ہے، پھر ہمیں کال کر کے انجینئر مرزا کہتے ہیں میری اماں نے کہہ دیا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا ورنہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی۔ یہ اسی کو لاؤ نا، وہ آئے اور میں پوچھوں کہ صحیح مسلم میں حضرت معاویہ نے منبر پہ لعنت حضرت علی پہ کروائی ہے، خدا کی قسم وہ میں آئی نا۔ اوہ تم نے مسلم سونگی نہیں ہے، ہم نے مسلم پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ بات کرتے ہو یار، مجھے الحمدللہ 3 سال دورہ حدیث میں اس کی تدریس کا معاملات شامل ہیں، ایسا پرابلم نہیں ہے۔ اگر لفظ موجود ہو کہ حضرت معاویہ نے منبر پہ حضرت علی پہ گالی دلوائی ہے، منہ مانگا انعام، جرت کر کے پیش کریں۔ جو لفظ ہے وہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، وہ لفظ کیا ہے، اس لفظ کا ترجمہ لعنت اور گالی نہیں ہوتی۔ اچھا ایک منٹ، اس لفظ کے اگر آپ گالی مراد لیتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے، توجہ رکھنا، یہ گالی حضرت حسن کو نہیں پتہ چلی تھی رضی اللہ عنہ؟ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، پھر میری نہ مان اپنے علامہ اربلی کی مان لے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 مان لے، وہ کہتے ہیں حضرت حسن گئے، حضرت حسین گئے، اپنے دوست قیس بن سعد بن عبادہ کو لے گئے رضی اللہ عنہ، اور وہاں پہ جا کے حضرت معاویہ کی بیعت کی، فقام الحسن فبایا ثم قام الحسین فبایا، ثم پھر نمبر آیا حضرت قیس کا، فاومی ایما، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، انا ابائی بیعت کر لوں، تو حضرت حسین نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا قیس قوم فبائیے ان الحسن انہو امامی، کہ قیس آپ ضرور بیعت کیجئے کیونکہ حسن میرا بھی بزرگوار ہے، جب وہ اور میں بیعت کر چکے آپ کو کیا تعامل ہے؟ اور ظالم یہ گالی تو کہتا ہے، حضرت علی کے بیٹے کو نہیں پتا، حضرت علی کے فرزندوں کو نہیں پتا، حضرت علی کی اولاد کو نہیں پتا، وہ تو صلح کرتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، تعلق عقیدت یگانگیت احترام و اکرام رکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا، تجھے پتا ہے۔ اور ایک بات اور سنو، میں فیصل آباد میں تھا، ایک شخص نے سوال لکھا، وہ اسی مرزے کا اسٹوڈنٹ تھا، کہتے مولانا حضرت امام حسن تک یہ گالی پہنچی نہیں تھی کیونکہ چھپ کے کمرے میں دیتے تھے،
मैंने कहा एक झूठ बोलने के लिए 100 बोलने पड़ते हैं। पहले कहते थे मिंबर पे देते हैं, अब कहते हो छुप के देते हैं। तो मिंबर पे छुप के बात होती है, मिंबर आनेर होता है, अला रूसी लशादी वन नास होता है, लोगों के सामने होता है। ऐसा मामला नहीं है, झूठ बोलते हैं। जैसे मुस्लिम पे कोई हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज हो और हजरत मुआविया ने फरमाया अली पे लानत करो, ऐसी हदीस ले आओ, मैं पूरी जिंदगी मिर्जे के घर की नौकरी कबूल करूं, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, बाजू तो बड़ी बात है, इनकी शक्लें मेरी आसमाई। हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने वाला बागी गिरोह और जहन्नमी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा एक सवाल है, अगर हजरत मुआविया का गिरोह जहन्नमी है नऊजुबिल्लाह इस हदीस की बुनियाद पर, तो मेरा एक सवाल है, सूरत हदीद आयत नंबर 10 रब्बे करीम फरमाते, तवज्जो रखना, मैं आपके सामने पूरी आयत पढ़ के दे देता हूँ। अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई इसका जवाब दिल की तख्ती पे लिख लो। मिर्जा की जुर्रियत अपनी कब्र से उठ के आ जाए, हिंदुओं की तरह कोई 7वां जन्म भी लेकर आ जाए, इनका बाप दादा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह के कुरान ने फैसला फरमाया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई है। ये सूरत हदीद है, आयत नंबर 10 है। रब्बे करीम ने सहाबा को रुतबे बताए। अल्लाह फरमाते हैं ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़म दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। फरमाया सहाबा की दो जमातें हैं, एक जमात मुहाजिर है, एक जमात मुहाजिर नहीं है, जिन्होंने हिजरत की है और जिहाद फरमाया है। एक लोग वो हैं उनका रुतबा भी है, और एक लोग वो हैं जिन्होंने हिजरत नहीं की, हिजरत के बाद आए हैं, इन्होंने भी जिहाद किया है, लेकिन इनका रुतबा छोटा है। एक का रुतबा बड़ा, एक का रुतबा छोटा, लेकिन जो सारे के सारे हैं वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, पैगंबर की तमाम जमात से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। तू कहते इस हदीस का मतलब है हजरत मुआविया जहन्नम की तरफ बुलाते थे। बता इस आयत का क्या करें? पता चला हदीस पाक का वो मतलब नहीं है जो तू ले रहा है। ओए बेवकूफ इंसान, तेरा तो हाल वो है जो इधर टाका उधर उधड़ा, उधर टाका इधर उधड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। इस हदीस में जो नार का लफ्ज है वो लफ्ज है जिसे कुरान नार कहता है। कुरान में नार दो किस्म का आया है, एक है फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इससे मुराद आग है, जहन्नम है। एक और नार है कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाह, सूरत माइदा आयत नंबर 64, इसमें नार से मुराद जंग है, क्योंकि नार लड़ाई को भी जंग कहा गया है। अगर इस हदीस का तर्जुमा मिर्जे वाला करें, इससे मुराद जहन्नम है। कुरान की आयात टूटती हैं जो हजरत मुआविया के लिए जन्नत की बशारत देती हैं, हदीस पाक टूटती है जो हजरत मुआविया के लिए जन्नत की बशारत देती है। इसी किताब में जिससे हजरत अम्मार की रिवायत इसने पेश की, उसी किताब में मौजूद है। हजरत मुआविया के लश्कर का नाम लेकर रब ने जन्नत की बात की, वो कुस्तुनतुनिया के मामले में मेरे दोस्तों तो वो टूटती है। अब मिर्जे का माना जहन्नम करें, हदीसें भी टूटी, मिर्जे का माना जहन्नम करें, आयात भी टूटी। अहले सुन्नत के पास आ जो कुरान भी समझते हैं, हदीस भी समझते हैं, और तुम्हें बताते हैं तर्जुमा वो करो जिससे कुरान भी महफूज रहे, हुजूर का फरमान भी महफूज रहे। वो तुम्हें आग यानी जंग की तरफ बुलाएंगे, तू इन्हें जन्नत यानी अमन की तरफ बुलाएगा, वो भी जन्नत है। ये भी तो बेवकूफ इंसान, लफ्ज का तर्जुमा तो देखा करो। अच्छा नहीं समझ आती, तुम्हें एक मिसाल पेश कर रहा हूं, मिसाल सुनना। ये है स्पीकर, मैं यहां कहता हूं जंग वालों स्पीकर 2 नंबर है, तो मुराद क्या होगा? ये स्पीकर मुराद होगा या नहीं होगा? बोली अच्छा है नहीं, नहीं आप साउंड वाले पे गुस्सा हो जाना, मैं वैसे कहता हूँ स्पीकर 2 नंबर है। और अगर कौमी असम्बली हो, कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम फरमाए स्पीकर 2 नंबर है, उधर क्या माना करोगे? उधर भी ये करोगे? लफ्ज स्पीकर है, आप कहेंगे देखा जाएगा कहां बोला गया, क्यों बोला गया, किस जगह बोला गया। इसे कहते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, इसे अरबी में कहते हैं सियाक व सबाक, तब जाकर माना समझ आता है। मिर्जा चब्बल बटा चब्बल है, उसने किससे पढ़ा नहीं, उसे हदीस का तर्जुमा नहीं, इस वजह से उसने गुमराह करके बिठा दिया है। माना ये नहीं है, वरना यूं चुटकियों में हल करना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआविया को बद्दुआ दी थी, अल्लाह तेरा पेट कभी न भरे, और मिंबर पे बैठकर सबसे पहले हजरत मुआविया ने खुतबा दिया। भाई अल्लाह के बंदे सुन, मिंबर पे खुतबा दिया था तो कौन सा जुर्म है? हुजूर पाक ने आलिम को मिंबर का वारिस करार दिया है। हजरत मुआविया आलिम भी है, सहाबी भी है, हुजूर के रिश्तेदार भी है।
कोई मैं मेंबर पे बैठूं, तेरा मौलवी मेंबर पे बैठे, बाकी मेंबर पे बैठ के जुमा पढ़ाए, प्रॉब्लम नहीं है। हजरत मुआविया बैठे, तुम्हें पर्सनल बन जाता है। दूसरी बात कि हजरत मुआविया को हुजूर ने बद्दुआ दी थी, वो जाहिल, ये बद्दुआ का लफ्ज नहीं है। इस पूरी हदीस को समझो तो बद्दुआ का लफ्ज नहीं है, तो मिर्जा की जहालत है, वो आपको सुनाता है। मैं पर्ची लिखने वाले को जाहिल नहीं कह रहा हूं, मेरी मुराद वही है जिसने ये सवाल उठाया है। भाई इससे मुराद बद्दुआ नहीं है, इस लफ्ज को भी समझो। क्या माना? ए अल्लाह। अच्छा चलो पहले मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, एक छोटी सी मिसाल। हम अपनी सराइकी पंजाबी में कहते हैं, लुग दिया जल्दी कर, हमने जाना है, ओए मारा जल्दी कर। हम जो कहते हैं ओए मारा, इसका क्या माना? तू मारा जाए, कत्ल हो जाए, उसका क्या मतलब है? कोई लुग दिया जल्दी कर, इसका क्या माना? तेरी बर्बादी हो जाए। तो ये जुमले बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो उर्फ़ आम में वो नहीं होते जो असल लफ्ज में है। मसलन किसी को कहते हैं कालू भाई क्या हाल है, अब उसका क्या माना? उसको चिढ़ा रहे हैं, तू काला है, तू ब्लैकी है। खुदा के बंदे, कोई नाम होता है, इमाम आमश मुहद्दिस का नाम है, सुलेमान इब्न मेहरान का नाम। आमश चुंदिये को कहते हैं, तो उन्हें चिढ़ाया तो नहीं जाता, समझाया जाता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इस अंदाज में बात फरमाई है, तुमने उस अंदाज को समझा नहीं। हाँ मुफ्ती साहब, जब तक जमहूरी निज़ाम है हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। चलो छुट्टी सौखा तरीका को। मुफ्ती साहब, हजरत मुआविया ने हजरत हसन से सुलह की थी, शरायत पे अमल नहीं किया था, ये तुझे पता चला, इमाम हुसैन को तो नहीं पता चला। शरायत पे अमल नहीं किया था, बेवकूफ इंसान, तुझे बात क्या है? हजरत हुसैन तो तादम वफात मुआविया हजरत मुआविया के वफादार रहे, हजरत मुआविया से यारी रखी। हजरत मुआविया के बाद यजीद से हजरत हुसैन टकराए हैं जैसे टकराने का हक। मैं कोई यजीद की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं यजीदी नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं, ये जहन में रखना। किसी ने मुझसे पूछा उस दिन हजरत हुसैन की बात पर, मुझे कहते हैं आपके यजीद के लिए क्या ख्याल है? मैंने कहा वो ख्याल है जरा सोने हुसैन का। हजरत हुसैन का जो ख्याल था वही मेरा है, लेकिन हजरत हुसैन ने तो हजरत मुआविया से यारी रखी है, मोहब्बत रखी है, मवद्दत रखी है, हर साल उनसे 10,000 दिरहम कबूल फरमाया है। अगर शर्त टूट गई थी, हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत इस शरायत के बाद 20 साल 19 साल 6 माह चली है, 20 साल चली है। 10वें साल हजरत हसन फौत हो गए, 10 साल तक हजरत मुआविया ने यारी रखी है। उन्हें नहीं पता था शरायत टूट गई, ये जेल में बैठे हुए कोड़ किल्ली, ये इसको पता चला। अजीब बात है यार। हदीस अम्मार, मैं इसकी तफसील दे चुका हूँ। हजरत अम्मार, मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपको पगड़ी खूबसूरत सजती है, सुन्नत जिब्राइली है तो क्यों नहीं सजेगी? मिर्जा कहते हैं शरायत पे अमल नहीं हुआ था, ये भी मैं कह चुका हूँ, शरायत पे अमल नहीं हुआ तो शरायत क्या है? अल्लाह मुझे और आपको सही अकीदा अता फरमाए। एक गुजारिश करता हूँ, आप बड़ी अजीम धरती के लोग, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सुनने के लिए यही मिर्जा मिला है? तो खुदा के बंदे बंदे यारों से पहचाना लेते हैं। तुम्हारे पास आले हक के पेजेस नहीं है, आले हक के चैनल नहीं है, आले हक के तुम्हारे पास वीडियोस नहीं आती, तुम्हें ये मिला है? ओ खुदा के बंदे, इधर तो हम इसकी बात सुनने के लिए शायद पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस पढ़े, उसके बाद फिर गल करो ते तुसी इनू सुनने वास्ते बैठे हो। खुदा दे बंदे, कुछ और नहीं लब्भा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, अजीब मामला, बाग फदक पर मैं हजरत बात वक्त है, तवज्जो बस। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का हजरत अबू बकर खा गए हैं, तो हजरत अली का जब दौर आया तो हजरत अली ने अपने दौर में हजरत फातिमा का हक अपने बेटों को क्यों नहीं दिया कि बेटो अपने माँ का हक ले लो? तो बेवकूफो, ये माना नहीं है। मतलब ये है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं बात पेश कर रहा हूँ अपने उस्ताद इज़िल मुकर्रम अल्लामा खालिद महमूद रहमहुल्लाह की। हजरत अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन रहमहुल्लाह यहाँ एक जुमला फरमाते थे, अम्मा फातिमा ने हक मांगा नहीं था, अम्मा फातिमा ने हजरत अबू बकर की नई नई हुकूमत को चेक किया था कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के जानशीन बन गए रज़ी अल्लाह अन्हु, देखो कि कहीं मेरी रियायत करके मेरे अब्बा का फैसला बदल तो नहीं देते, चेक करो, क्योंकि अब्बा का फैसला था ला नूरिस वला नूरस मा तरकनाहु सदका, नबी की विरासत तकसीम नहीं होती। कहते अम्मा फातिमा हुजूर की 7 औलादों में आखिरी औलाद दुनिया में बची हुई थी, उन्होंने चेक फरमाया अबू बकर को कि कितनी दियानत है इसमें, क्या नबी की बेटी देख के नबी का फैसला बदल तो नहीं देता? जब बात हजरत अबू बकर के सामने आई तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, बेटी फातिमा, दुनिया की जिस जमीन पे उंगली रख ले तुम्हें दे दूंगा, इधर आपके वालिद और मेरे नबी का फैसला है, तकसीम नहीं हो। अल्लाह के बंदे पूरी बात समझा करें। ये भी वही सवाल है, इसका पहले दे चुका हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।